Welcome to class 12th. Let me start our topic, applications of Gauss theorem. In the applications of Gauss theorem, our first point is Coulomb's law. It means derivation of Coulomb's law with the help of which thing? Coulomb's law की derivation हम करने जा रहे हैं किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था कि सपोज करो भाई एक चार्ज होता था, उससे दूर r डिस्टेंस पे हमारा दूसरा चार्ज होता था। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमने यहां पर गॉसियन सरफेस अप्लाई कर दी। पॉइंट चाहे तो इसको कवर कौन करेगा? एक सरफेस। जो सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, तो स्फेरिकल सरफेस कवर कर दी। यहां पर कोई स्मॉल एरिया डीए ले लिया तो डीए का जो वेक्टर है, डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये हो गया। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हो गया भाई cos थीटा 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। जब हम फोर्स निकालते हैं, दो चार्ज होना चाहिए थे, एक सेपरेशन होना चाहिए, तो इसका आंसर फोर्स का आना चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r square. If the medium is there, then k there should be k, otherwise not. एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हम गॉस थ्योरम ना भी अप्लाई करना चाहें तो इससे कनेक्टेड फ्लक्स कितना होगा? भाई टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो तो phi E is equals to what? Phi E is equals to close integration of d phi. dA is equals to E dot dA, d phi E is equals to E dot dA. Very simple. Close integration. E dA means E dA cos theta, or cos theta means cos 0 is equals to 1. So you can write E dA cos 0 1 to 1. So my dear, you can write again here E close integration of dA. Again, at the place of dA, the surface area of sphere is 4 pi r square. Equation number 1. This is by the formula of the flux. Next, by Gauss theorem, we know that phi is equals to the total connected flux due to the area is q upon epsilon naught. I can compare these because these both equations gives out the value of what? अरे यार सिंपल सी बात है, किसकी वैल्यू दे रही है? फ्लक्स की। तो दोनों फ्लक्स को हमने इक्वल कर दिया, इससे E की वैल्यू निकाल दी। 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ मिलेगा, r स्क्वायर को q के साथ मिलेगा। बस इतना ही किया है और रीएडजस्ट किया है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर आपसे कहा जाए कि गॉस थ्योरम की हेल्प से पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपको इतना ही करके छोड़ देना है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखनी होगी? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज। लेट अस सपोज वी हैव अ चार्ज q नॉट, इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. The charge placed point at O. At a distance small r, there is any charge q naught. At the q naught, we have to draw an Gaussian surface with radius r. So its surface is the spherical surface. We can take an small element of area dA. Its area vector is dA is as shown in figure. The electric field is also outward. They are in the same direction, which is the perpendicular. At this point, they are perpendicular to area. Very simple. So my dear, there is the angle is 0 and cos 0 is 1. We know that the force, after that we know that the force is given by Q naught E. From the definition of electric field, so F equals to 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square, because q upon r square till here I am using the value of E and Q naught is there. So here we derive the formula of Coulomb's law by Gauss theorem. Note it fast. So my dear, जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर और लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इनफाइनाइटली। So now the point is electric field due to long straight wire. By using Gauss theorem, it is second application. After first application, we are moving towards second application. Clear? Suppose that there is a wire of infinite length like this. I don't know what is the length of the wire. This is a wire over which the charge is spread. अब हम वही सपोज कर लेते हैं कि भैया Q चार्ज सपोज दिया है हमने। क्या दिया है? Q चार्ज। अब कितने हिस्से में कितना चार्ज है क्या पता, इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं। अब जब वायर ही इनफाइनाइट है तो हम कैसे इसको इवेल्युएट करें? तो हमने इसका एक अंदाजा लगाया कि भाई यहां से r डिस्टेंस पे एक हम सरफेस ड्रॉ करते हैं।
अब आर इधर है तो आर इधर भी होगा, और हमने ये एक सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि वायर को कवर कौन करेगा, सिलेंडर, तो मैंने कैसी सरफेस ड्रॉ करनी है, सिलिंड्रिकल। कैसी सरफेस ड्रॉ करनी है, सिलिंड्रिकल सरफेस। तो मैंने ड्रॉ कर दी भाई, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, कर दिया। ऐसे करके मैंने एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया इस पे। अब जब सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ हो गया तो इसके पास अब देखो तीन सरफेस है। कोई भी सिलेंडर होता है पहले ऐसे होगा, फिर ऊपर से सर्कुलर, नीचे से सर्कुलर, दो जगह से सर्कुलर पॉइंट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर तीन एरिया सपोज करते हैं अपने मन से। एक ये हो गया DA1, एक यहां पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा DA2, और एक यहां पे कोई सरफेस एरिया लेते हैं, चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, इंटरनल है, डॉटेड नहीं बनाना है। इधर सरफेस एरिया DA3 हो जाएगा, DA3। अब गौर देना आप लोग, DA3 वेक्टर किधर होगा, DA3 का वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर, इसका वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर, DA1 वेक्टर, और इसका वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर, DA2 वेक्टर। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने प्लस चार्ज दिया है तो उसे बाहर की तरफ निकलना है, माइनस चार्ज दिया तो अंदर की तरफ आना है। लेकिन ये वायर है तो वायर से परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, परपेंडिकुलर अंदर आएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होनी है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई ही हो गया, और डायरेक्शन सेम हो गई। यहां पर एंगल हो गया θ2 इज इक्वल्स टू 0। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा θ1 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अगर इधर लेते तब भी बाहर होता है, 90 एंगल ही होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, तो यहां पे हो जाएगा θ3 इज इक्वल्स टू 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आई होप की फिगर समझ में आया होगा। पहली बात, जहां पर जितना एंगल है, सॉरी 0 नहीं, आई एम सॉरी, इट इज 90 डिग्री माय डियर, इट इज 90 डिग्री, आई एम सॉरी फॉर दैट, 90 डिग्री। क्लियर। यहां 0, दोनों एक ही लाइन पे 0, यहां एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितना एंगल है ये, 90 डिग्री। कितना एंगल है ये, 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, एक बात बहुत सिंपल सी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हमें जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे, मैंने पहले से आपको बता दिया कि हमें क्या जरूरत पड़ने वाली हो सकती है, हम उसे यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट थिंग, चाहो तो पहले लिख लेना, गॉस थ्योरम को बाद में लिख लेना। पहले सबसे पहले हमें निकालना है फाई ई। फॉर्मूला कहता है कि भाई आप पहले इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई निकालो, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई निकालो। अब हमारे पास अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 सरफेस है, तो हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई 1, या मैं डी फाई 1 लिख देता हूं, ई नहीं लिखता, डी फाई 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3। अब मुझे क्या करना है कि फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी ए, तो मैंने यहां पे फाई ई की वैल्यू लिख दी पहले वाले के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए 1 प्लस ई डॉट डी ए 2 प्लस ई डॉट डी ए 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फाई 1 ई डॉट डी ए 1, फाई 2 ई डॉट डी ए 2, ई डॉट डी ए 3, ई डॉट डी ए 3 लगा दिया। यहां 90, 1 में 90, 3 में 90, केवल 2 से हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि जहां 90 वहां तो 0, और cos 0 बाई cos 90 की वैल्यू 0, और 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आने वाला है, 0। तो यहां पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें केवल वैल्यू किससे मिलने वाली है, सरफेस एरिया 2 से मिलने वाली, क्योंकि यहां पे 0 है, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए 2 प्लस 0। भाई सिंपल सी बात है, ई तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ई बाहर आके बेचारा, इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगा, डी ए 2 के ऊपर लगा दिया। ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसा होता है, अगर हम चाहें तो उसे एक एग्जांपल के तौर पे देख भी सकते हैं कि हमारा कर्व सरफेस एरिया कैसा होगा। जैसे कोई बॉटल वगैरह है तो उस बॉटल वगैरह का कर्व सरफेस कैसा होता है, ऐसे तो होता है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया। मैं बॉटल को ना लेना, बॉटल आगे से थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन भी होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी का कोई आपके पास है, तो मेरे पास अभी दिखाई नहीं दे, इतने में दिखा था आपको।
क्लियर? अब क्या करते हैं कि हम यहां पर इसे लिख देते हैं E और 2 पाई आर एल। एल क्या है? एल इज दैट इफेक्टिव लेंथ, जिस पर्टिकुलर लेंथ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सरफेस एरिया दैट यू आर यूजिंग। तो जितना एरिया उतने ही एरिया पे आपका चार्ज। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये होगी कि अगर हमने क्यू चार्ज एल लेंथ को दिया है तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल क्या है? क्यू अपॉन एल क्या है? चार्ज ऑन द यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, देखते हैं जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। मैंने सरफेस एरिया सही लगाया, 2 पाई आरएच होता है, एच की जगह पर इसकी लेंथ क्या काम कर रही है? एल काम कर रही है, तो मैंने ये पुट कर दिया। अब भैया हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है? ऐसे कहते हो इक्वेशन नंबर 1 डी फाई ई की वैल्यू आ गई। ई लगाओ ना लगाओ, क्योंकि मैं जनरली ई से लगाता हूं कि जब भी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में भी हमारा फाई आएगा और वहां पे हम बी यूज करेंगे। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर द पर्टिकुलर क्लोज सरफेस एरिया। बाय इक्वेशन 1 and 2 we get E into 2 pi r l is equals to q upon epsilon naught. I'm right or wrong? अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं यहां ही लिख देता हूं छोटा सा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। E is equals to, देखिए भाई 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और E is equals to Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और Q की जगह लिख देता हूं मैं लैम्डा। आप लोग समझ सकते हैं ये जो Q अपॉन L है ये क्या बन गया? लैम्डा बन गया, क्योंकि Q अपॉन L क्या होता है? लैम्डा होता है। तो हमारा ये डेरिवेशन हो गया। दोनों ही हमारे फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं ये दोनों? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के। किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के? वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो यू नोट इट। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long charge sheet. Let us suppose an infinite sheet, but for the purpose of calculation we are taking a particular part of the sheet. Let us suppose we have the sheet like this. I am taking the sheet in this way because I am going to calculate about a small portion, and this is sheet on which a Q charge is spread equally. तो इस शीट पे हमने क्या किया है? एक चार्ज लिया Q जो इसको दे दिया। अब भाई हमें ये तो पता नहीं कहां पे कितना चार्ज कैसे है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या है? सिग्मा। सिग्मा की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। E due to infinite charge sheet. Infinite charge sheet, it is our topic after that particular topic. For this purpose, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक बड़ा सिंपल सा काम है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा तो यहां पर हमें एक गॉसियन सरफेस लेनी है एक छोटे एरिया के लिए। तो हम इसके लिए जो सुटेबल गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल हो जाती है। तो एक यहां पर सर्कुलर पोर्शन ले लें और उससे सुटेबल गॉसियन सरफेस हमने यहां ले ली इस डिस्टेंस पे, ये भी डीए हो जाएगा, वो डीए है। तो ऐसे ही यहां पर भी हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी जो ये भी हमारा डीए होगा। अब डीए वेक्टर कहां होना है? इधर डायरेक्शन में।
और यहां से डीए वेक्टर किधर होगा, इधर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा भाई, प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, इधर ही पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से। बहुत सिंपल सी कहानी है। किसी भी जगह पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम यही काम करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे फाई निकालना है, तो फाई ई की वैल्यू φ1 प्लस φ2 होनी चाहिए या नहीं, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस सरफेस। साइड दो ही तो है, साइड 1 साइड 2, या साइड 1 साइड 2, एनी साइड, कोई भी आपको जैसा सही लगे आप वो ले सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई साइड 1 साइड 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्लक्स भी होना चाहिए। अब कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई बात हो नहीं रही है, नहीं हो रही ना, तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशल कोई बात नहीं हो रही है, तो वहां पर हम इसे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, और ये भी हो जाए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। दीज ऑल आर वेक्टर्स। एंगल जीरो cos 0 इज 1, तो हमें यहां पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप गौर से देख सकते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं 2e कॉमन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको पता है कि इसका एरिया कैसा है तो वो एरिया लगा दीजिएगा, नहीं पता है तो आप ए लिख दीजिए। ए जो भी एरिया होगा, जो भी आपने एरिया टेकन किया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2e लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है भैया हमारा फाई की वैल्यू। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, लिख दो बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम कहती है, ये भी लिख दिया भाई, लिख दिया। तो दोनों को हमें कंपेयर करना होगा, तो कंपेयर कर देंगे 2EA इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे E की वैल्यू निकल के क्या आएगी, E की वैल्यू जाएगी क्यू अपॉन, जैसे ही दोनों कंपेयर किया हमें E की वैल्यू क्या मिल रही है, क्यू E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से E की वैल्यू ये भी तो लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोले क्यों भाई, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। भाई हमें ये तो पता नहीं टोटल चार्ज कितना है, लेकिन सिग्मा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने चार्ज दिया, सरफेस एरिया इतना है, तो पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना होगा, सिग्मा होगा। तो पर यूनिट एरिया का चार्ज तो हम लगा ही सकते हैं। हो सकता है कई बार हमको क्वेश्चंस में भी पर यूनिट एरिया का चार्ज गिवन हो, इट मींस चार्ज डेंसिटी गिवन है, और वो क्या है, वो हमारी सिग्मा है। वो क्या है, वो हमारी सिग्मा है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम कंडक्टिंग प्लेट से पढ़ेंगे। कंडक्टिंग प्लेट से सॉरी, पहले तो अभी हम एक प्लेट से पढ़ा है, 2 प्लेट से पढ़ेंगे। इसके बीच में निकालेंगे, इसके दाएं निकालेंगे, इसके बाएं निकालेंगे, और किससे पढ़ेंगे, फिर कंडक्टिंग प्लेट से पढ़ेंगे, और फिर स्फेरिकल सेल, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन फास्ट। मैं हट गया हूं, आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं इसको। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं आगे का।